A morning devotion from Oil and Wine.
We are already late. पहले ही देर हो चुकी है And we need to move on and spend some time with God's Word, even this morning. और आज सुबह भी अब हमें आगे बढ़कर परमेश्वर का वचन में कुछ समय देकर उसमें सुनना है। This morning, even as I stand here, आज सुबह जब मैं यहां पर खड़ा हूं, I stand here with a sorrow in my heart. मैं यहां पर एक दुख के साथ खड़ा हूं अपने हृदय में। Well, I have no words to really express that to you. और Not really many words. उस दुख का विवरण देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं कि कैसे बताऊं। But I stand here with a sorrow in my heart. परंतु मैं यहां पर एक दुख लिए खड़ा हूं अपने हृदय में। It's because that I'm able to see with the help of the Holy Spirit the conditions of some lives. वो इसलिए कि मैं यहां पर पवित्र आत्मा की सहायता से कुछ लोगों के जीवनों को देखकर दुखी हूं। While they are still in this place, being here physically in their lives, being involved one way or the other in that which is going on here, there is no real activity of the Spirit within them. यद्यपि वो शारीरिक रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है उसमें वो सम्मिलित हैं, परंतु आत्मा का वास्तविक कार्य उनके जीवनों में नहीं हो रहा। There are other activities here. यहाँ पर दूसरे कार्य हैं। This is one of them. उनमें से एक कार्य ये भी है। But there is no activity of the Spirit in their beings. परंतु पवित्र आत्मा का वो कार्य उनके व्यक्तित्व में नहीं है। This is the sorrow I have upon my heart. और यही वो दुख है जो कि मेरे हृदय पर है। We are physically here. We are given to many things that are going on in this place, but there is no openness for an activity of the Holy Spirit in their beings. शारीरिक रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं उसमें सम्मिलित हैं, परंतु उनके हृदय खुले नहीं कि पवित्र आत्मा उनके अस्तित्व में कुछ कार्य करे। It's sorrowful state. और ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। And this is one thing we see in the history of God's people. और यही एक चीज हम परमेश्वर के लोगों के इतिहास में देखते हैं। And afterwards, और उसके पश्चात we see that such ones, when they get into the rough road in their own lives, और ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि जब वो अपने जीवन के उबड़ खाबड़ मार्गों में आते हैं अपने जीवन में, when things go wrong and negative in their lives, जबकि वस्तुएं उनके जीवन में गलत हो जाती हैं और नकारात्मक हो जाती we हैं, tend to blame everybody else for such conditions. तो उस परिस्थिति के लिए हम प्रत्येक जन को दोषी ठहराने लगते हैं, Except themselves. परंतु अपने आप को Now that's नहीं। what we see in the scriptures. और यही हम वचन में भी देखते हैं। And I want to say with all my heart, और मैं अपने पूरे मन से ये कहना चाहता हूँ, nobody is going to stop you and control your opinion. कोई भी आपके राय को न रोक सकता है, No, not न even नियंत्रण God. कर सकता है। God is परमेश्वर भी not नहीं। going to stop you from your opinions. आपकी राय क्या है, परमेश्वर भी उसमें दखल नहीं दे सकता और रोक God नहीं is not going to stop you from having your judgments. सकता। और जो आपने अपने निर्णय या न्याय ले लिया है,
परमेश्वर उसमें आपको रोकेगा God नहीं is not going to stop you from having your thoughts. और आपकी अपनी विचार धारणाओं को आपने रखा है God is not going to stop you from having your ways. और आपने अपने मार्ग अपनाए हैं तो परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं No, God is not going to. परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है But where will that take us in our lives is important. परंतु महत्वपूर्ण बात That's of यह है कि हम अपने great, जीवन that's of में कहाँ great जाएंगे significance. और वो ही एक महत्वपूर्ण वस्तु है Where will all that take me? Will it take me all into the fulfillment of the call and purpose? Or will it take me to elsewhere, to some other destiny in my life? परंतु हमने ये देखना है कि वो सारी वस्तुएं मुझे परमेश्वर के उस उद्देश्य में ले जाएंगी या किसी और मंजिल में पहुंचाएंगी My dear brothers and sisters, I don't stand here to judge anybody. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों मैं यहाँ पर किसी को के न्याय के लिए And नहीं I will say once again, परंतु मैं एक बार फिर से these कहूंगा, camp meetings are crucial for some lives. ये कैंप की सभाएं कुछ जीवनों के लिए बहुत ही आवश्यक और नाजुक And है it's time you must hear God, and there must be a real activity of God in your life. और ये समय है कि आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है और आपके जीवन में एक वास्तविक पवित्र आत्मा का कार्य होना आवश्यक है You know, it's so easy for activities outwardly. और बाहरी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भाग लेना It's सम्मिलित so easy to होना be पसंद है। involved in a camp meeting like this. और एक कैंप की सभा में सम्मिलित होना इस प्रकार से बहुत For आसान है all of us. हम सबों के लिए But परंतु the question that is still before us is, प्रश्न जो कि अब भी हमारे is सामने there है a genuine activity of the Spirit deep within us? क्या हमारे भीतर पवित्र आत्मा का गहरा कार्य हमारी So गहराई I just want to share this with us. और मैं ये कहना चाहता था हमसे You know, God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है God has a call and a purpose over our lives. परमेश्वर की एक बुलाहट और उसका उद्देश्य हमारे जीवनों पर है And let every man take heed to his own life. प्रत्येक जन अपने खुद के जीवन की ओर ध्यान करे So may the Lord help us even this morning as we come around his word. परमेश्वर हमारी सहायता करे जब कि हम उसके वचन के पास आए हैं And that we may open our hearts and lives. कि हम अपने हृदयों और जीवनों को खोल दें I can say this with all convictions. और मैं पूरे एहसास के साथ इस बात को कहता हूं You know, a remnant who is able to behold and see this one who is high and lifted up. एक बचे हुए लोग जो इस योग्य होंगे जो इसको देखेंगे जो ऊंचा The उठाया ones who गया है have come into a vision and a revelation and beholding of this Christ and his glory. और एक बार जब हम इस मसीह को जो कि ऊंचा उठाया गया और उसकी महिमा को हम देख लेते हैं You know, those ones will be so different in their lives. वो अपने जीवन में बिल्कुल एक विभिन्न प्रकार के This रस बन will जाएंगे become more and more visible in the days to come. और आने वाले दिनों में ये और भी दृश्य हो जाएगा And so may the Lord help us. May we परमेश्वर सहायता करे turn again to the book of John and chapter 12. यूहन्ना की पुस्तक और 12वें अध्याय की ओर फिर से We आते will हुए turn to verse 41 once again. और उसका 41वां पद एक बार फिर हम देखेंगे These things said Esaias when he saw his glory and spake of him. ये बातें एसायास ने कही जब उसने उसकी महिमा को देखा और उसके विषय में बात की The Lord helped us to see several precious counsels of God in and through these meditations. इस स्मरण के द्वारा परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि हम परमेश्वर की कई सम्मतियों और सलाहों को देख सके I'm not going to revise all that we have heard till last night.
वो सब बातें जो कल रात तक हमने सुनी, मैं उनको फिर से दोहराना नहीं चाहता, I want to emphasize again this morning. परंतु मैं इस बात पर अधिक जोर देना चाहता हूं, Our eyes must behold the one who is above. हमारी आंखें उसको देखनी चाहिए जो ऊपर है। We can only be sustained if our eyes are really open and we are beholding the one who is on the throne. हम तभी बचे रहेंगे जब हमारी आंखें खुली होंगी और हम उसे देखेंगे जो कि सिंहासन पर विराजमान है। You have seen towards the closing of our gathering last night the example of the Apostle Paul. और कल रात समाप्त करते समय हमने पौलुस प्रेरित का उदाहरण देखा। The most amazing thing about this man is that he himself does not go into pieces when things around him was all breaking into pieces. एक बड़े आश्चर्य की बात हमने ये देखी कि जब उसके चारों ओर की सारी वस्तुएं टूटकर बिखर गई, वो स्वयं बना रहा। And the reason was there was a vision that was set before his eyes. और कारण यह था कि उसके आंखों के सम्मुख एक दर्शन था। His link was with heaven. और उसका संपर्क स्वर्ग से था। He has seen the Lord high and lifted up just as Isaiah. और उसने उसी प्रकार से प्रभु को ऊंचा उठाया हुआ देखा था जैसे कि यशायाह ने। In terrible times. और उसने उसको भयंकर समयों में बचा के रखा। Him in a terrible hour in his life. और उसके जीवन के भयंकर घड़ी में उसने ही उसे सुरक्षित रखा। We read in the book of John, these things spake he because he saw the glory of Jesus Christ. यूहन्ना की पुस्तक में जैसे हम पढ़ते हैं कि ये बातें वो उसने कही क्योंकि उसने यीशु मसीह की महिमा को देखा। And I want to say with all my heart, saints, this one thing will sustain God's true remnant in this earth. और मैं अपने पूरे हृदय से इस बात को कहता हूं कि यही एक बात इस पृथ्वी के ऊपर उसके लोगों को बचाए रखेगी। God will have a true remnant in the earth, a vessel that will bear the testimony of Jesus Christ. परमेश्वर के पास इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे पात्र होंगे जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही को कायम रखेंगे। You know, God is constituting that vessel in the earth. और परमेश्वर उस पात्र का इस पृथ्वी पर निर्माण कर रहा है। That is our calling. Wherever we may be coming from, that is our calling in Christ Jesus. और चाहे हम कहीं से भी क्यों नहीं आते हो, वो ही हमारी बुलाहट प्रभु यीशु मसीह में है। Whether you are gathering in 5s or 10s, or in 2s or 20s, one thing is very clear. This is why you are kept by God in these places. और चाहे आप 5 जन हैं, 2 जन हैं, 10 हैं या 20 हैं, कहीं कहीं पर हैं, लेकिन आपको सुरक्षित रखा गया इसीलिए क्योंकि आपके जीवन पर God has been to this end that God's purpose may be fulfilled. और आपकी सुरक्षा इसी कारण से है कि परमेश्वर का ये उद्देश्य आपके द्वारा पूरा हो सके। Saints of God, as we had just mentioned about Noah of old. और जैसे कि हमने उस पुराने नोहा के विषय में चर्चा की, A man of righteousness, जो कि धार्मिकता का व्यक्ति था, who spoke a word for 120 long years. और जिसने के वचन का प्रचार 120 वर्ष तक किया। He was a vessel of God वो परमेश्वर का एक पात्र था who could bear the testimony of Jesus Christ in the earth. जो कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही को इस पृथ्वी पर रख सका। And the Lord Jesus Christ said like this, तो यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, the coming of the Son of Man shall be as in the days of Noah. मनुष्य के पुत्र की आमद इस पृथ्वी पर उसी प्रकार से होगी जैसे कि नोहा के दिनों में हुआ था। There was one witness in the earth, और इस पृथ्वी पर एक गवाह था, Noah and his family. नोहा और उसका परिवार। A family that was open for God's workings in their lives. और वो परिवार जो कि परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने जीवन में खुला हुआ था। Family that could bear the testimony of Christ in the earth. और वो परिवार जो कि मसीह की गवाही को इस पृथ्वी पर रख सका। And God will similarly have a family of God,
a vessel of God in the earth that will bear the testimony of Jesus इसी Christ. प्रकार से परमेश्वर के पास एक परमेश्वर का परिवार होगा इस पृथ्वी के ऊपर जो मसीह यीशु की गवाही को कायम रखेगा। You know, saints, we need to guard our own individual lives. और इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन की चौकसी करनी चाहिए। We need to bring our lives and align it in line with God's purpose. और हमें चाहिए कि अपने जीवनों को लाकर परमेश्वर के उद्देश्य के साथ जोड़ दें। Watch over our family lives. और चाहे हमारे पारिवारिक जीवन कैसा क्यों ना You हो, know what happens with you, और आप जानते हैं कि आपके साथ क्या होता what है, happens with your family. और आप जानते हैं कि आपके परिवार के साथ क्या होता है। You know, these are so important in the economy of God. परमेश्वर के इस प्रबंध के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व है, And may God help us therefore. और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। You know, these are the days we must really set our hearts to seek after the Lord in our lives. और ये वो दिन है जबकि हमारे हृदय पूरी रीति से प्रभु की खोज करें हमारे जीवन Even में, as individuals and even as families. व्यक्तिगत रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी। And I want to say this. और मैं कहना चाहता हूँ, Let us not take lightly the counsels of God. परमेश्वर की सलाहों को हम लापरवाही से ना ले। Many times बहुत सी बार we can miss those precious things हम उस बहुमूल्य वस्तुओं से which we have been gaining over the years. और जिनको अब तक हम चौकसी कर रहे थे, It's been a history of God's people. और वो परमेश्वर के लोगों का इतिहास हमें बतला। The world of the